کریں باتیں کے ایک اور ایکسائٹنگ ایپیسوڈ کے ساتھ. میں ہوں آپ کی میزبان حنا نیازی. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ارے بڑا ہلدی سوٹ پایا ہے. ہلدی لگ رہی تیری مت بجی. اس رنگ دی ہلدی ہوندی یار, کی ہو گیا؟ گرم مسالہ ہوندا اس رنگ دا. اچھا اینو غصہ پتا کیوں لگا؟ اج دوواں بہن بھراواں نے اکو جے کلر دے پائے. یہ بہن لگدی؟ نہیں نہیں میری نوح ہے میری. پینا ویکھو کڈا تیز ہے. اپنا بھلا نہیں اپنے پتر دا بھلا کرن دے. چلو خیر ہے, ہونی تے گھر ساڈے گھر ہی ہے نا. بہن بھرانا کہو, دادا تے پوتی کہو. تو آج کیا سرپرائز ہے نا کے؟ آج ہمارے پاس بہت زبردست, بہت خاص مہمان ہیں. اچھا جی, آج کے ہمارے پہلے مہمان فلم اور ٹی وی کے بہت کامیاب ہدایت کار اور مصنف ہیں. ان کے لکھے ہوئے جملے ضرب المثل بن جاتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں خلیل الرحمان کنور صاحب. اور خلیل الرحمان کنور صاحب کے ساتھ تشریف فرما ہیں بہت زبردست ایکٹریس اینڈ ماڈل, ڈاکٹر بھی ہیں, انیزہ رمضان صاحبہ. ویلکم ٹو دس شو سر, ویلکم ٹو دس شو انیزہ. بہت پیارا آپ نے کلر پہنا ہوا ہے, بہت بریزی اور سمری سا کلر پہنا ہوا ہے. تھینک یو سو مچ, آپ بھی بہت اچھی لگ رہی ہیں. تھینک یو. خلیل صاحب, پچھلے دنوں ہمارے سابقہ وزیر اعظم نے آپ کو بلایا, شان صاحب کو بلایا, کیا باتیں ہوئیں, کیا راز و نیاز کیے, کوئی ہمارے ساتھ بھی آپ شیئر کریں, ہمیں بھی بتائیں. نہیں, وہ باتیں شیئر نہیں کی جا سکتی سوائے اس کے کہ زندگی میں شیر دیکھا نہیں تھا, اس دن میں نے شیر دیکھا ہے. اچھا. with all his spirits, with all his commitment, the man we need really. And I was so happy meeting him. You know, I was in Dubai when I was told that you have to come and meet the Prime Minister tomorrow. It was a treat being with him. Really? Oh yes. تو کچھ تو شیئر کریں, کوئی تھوڑی سی باتیں, چلے ساری نہ بتائیں لیکن. وہ جو سمجھتے ہیں کہ وہ چلا گیا ہے, جی, وہ آنے کا ایک دوسرا طریقہ ہے اس کا. واہ واہ واہ. اب کی بار جب آئے گا, اللہ اکبر, جو اس ملک کے ساتھ بھیانک کھیل کھیلا گیا ہے, اللہ معاف کر دے اس قوم کو اور اس قوم کے ساتھ یہ ظلم کرنے والوں کو. تو یاد رکھے گی, میری بد نصیبی یہ ہے کہ مجھے یہ دن بھی دیکھنا تھا. اللہ سے دعا کیجئے, یہ مان کر جینا بند کر دیں گے یہ بھکاری ہیں. یہ بھکاریوں کا دیس نہیں ہے, ہمیں بھکاری بنایا گیا. اور یہی وہ لوگ تھے, 35 سال انہوں نے ہمیں بھکاری بنانے میں اور اپنا مال بنانے میں صرف کیا ہے. اور آج مزے کی بات یہ ہے, اس کے باوجود ہم نہیں مان رہے کہ ہم بھکاری ہیں. وہ جن کے پاس اربوں کا لوٹا ہوا خزانہ ہے, وہ مانتے ہیں کہ وہ بھکاری ہیں. What a shame. خلیل صاحب تسی آپ ہی دسو, اگر وزیر اعظم عمران خان صاحب ہون گے تو پھر اسی غیرت مند, تے جے وہ نہیں تو پھر ساڈی غیرت دا مسئلہ ہے. اسی انہوں نے ووٹاں دتیاں, اسی انہوں نے کھلاں دتیاں, اسی انہوں نے سب کچھ دتا, انہوں نے سانو پونے 4 سالاں وچ کی دتا. اتوں جاندے جاندے کہندے میں تہاڈی غیرت جگاؤنی ہے. پونے 4 سال سوارا ٹائم ملن, پرفارمنس اونا کو نہیں تے جاندی میری غیرت دا مسئلہ ساڈا بنا گئے نے. پہلے کہتے تھے کہ میں آپ کی تقدیر جگا دوں گا, اب کہتے ہیں کہ میں آپ کی غیرت جگا دوں گا. پونے 4 سال اکو فکرہ خلیل صاحب وہ کہندے رہے نے کہ گھبراؤنا نہیں, تے آپ اپوزیشن چ 10 دن نہیں گیا ہوئے تے گھبراؤنا شروع کرتا انہوں نے. یہو جے بندے آواز لانے راتی جاگتے رہنا, میرے تے نہ رہنا. خسرو صاحب نے جو کہا تھا نا, اس کی قیمت انہوں نے اپنی جان دے کر ادا کی ہے. تے اینا تے کدی ناخن نہیں ٹوٹیا قوم واسطے. سانو یہی کہندے رہے آخری گیند 22 کروڑ عوام یہی ویکھدی رہی, پتہ نہیں کہڑے ویلے جوگر پا کے کٹ کر کے آ کے کو آخری گیند کران گے, کو نون لیگ دی وکٹ سٹن گئی یا پیپل پارٹی دی, تے آپ ہی رستے چ رن آؤٹ ہو گئے. آخری گیند کی کھیڈنا سی انہاں تے, وہ تو وکٹاں بھی پٹ کے لے گئے تے پچھلے جے رولا پھری تے وہ بھی نال لے گئے. 4 سال دی ناکامیاں امریکہ تے پا کے تے آپ نکل گئے نے. ٹرمپ دے کول جا کے بیٹھے سن, کہنے میں بڑی خوشی ہے ملن دی, بڑا فین ہاں میں ٹرمپ دا. نہیں ادو کہندے سی میں دوجا ورلڈ کپ جیت کے لے آیا. پہلے کہتے تھے مجھے بائیڈن فون نہیں کرتا, اب کہتے ہیں کہ میرے خلاف سازشیں کر رہے. امریکہ نے کہا سی کہ بزدار صاحب نو پنجاب چلاؤ, نہ خود کام کرے نہ کسی نو کرن دے. اور یہ دسو کہ جڑے پوری دنیا تو وڈی تنخواہ تے لب کے مشیر لائے سن,
ਇਹ ਮੋਇਦ ਯੂਸਫ, ਇਹ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਔਰ ਕਾਹਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਜਿੱਥੇ 2018 ਚ ਖੜਾ ਸੀ। ਪਰਫਾਰਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਕੱਲ ਬਾਬੀ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰ 'ਚ ਡੋਈ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਰ ਇਹ ਜੋ ਕਰਾਉਂਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਟਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਟਰ ਹੈ। ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਮਾ ਕਰਾ ਬਾਬਾ, ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਮੀਟਰ। ਐ ਸ਼ਾਹਿਦ ਖਾਨ ਕੱਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। भाई तू आप ध्यान नाल मोटरसाइकिल चला। डॉक्टर अनीजा, Yes. मुझे ये बताएं कि आप एक डॉक्टर हैं, आपने MBBS किया, फिर मीडिया में कैसे आई आप? मीडिया में मुझे आने का शुरू से शौक था, लेकिन पहले मैंने अपनी स्टडीज कंप्लीट की, उसके बाद मैं मीडिया अच्छा, में आई हूँ। डॉक्टर भी बनने का शौक था और मीडिया में भी आना था? जी, वो पेरेंट्स का शौक था। अच्छा, पेरेंट्स का शौक था कि डॉक्टर बनो। हाँ अरे जी। वाह, मतलब पेरेंट्स को भी खुश किया, उसके बाद हाँ जी, अपने पैशन को परस्यू किया। बिल्कुल बिल्कुल। ये होती हैं लड़कियां, पहले डॉक्टर बनी, फिर उसने मॉडलिंग में आने का सोचा, टीवी पे आने का। एक घर भी वेली, ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੇਲੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸੇ ਬਾਬਾ, ਤੂੰ ਪਿਓ ਏ ਉਹਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਹਾਂਜੀ ਕਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਮੈਨੇਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਉਦੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਕਰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ? ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੋ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹੋ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਵਾਰਿਸ। हाँ बाबे दी गल कुछ नहीं होंदी है ना, तू ते बड़े नावल लिखना है। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈ ਕੇ ਕਰੋਸ਼ੀਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਪਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ। ਮਾਮੇ ਫਿਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਮਝਾਵੇ। अच्छा, ये दोनों आपस में लड़ इसलिए रहे हैं कि एक्चुअली शोबिस का और डॉक्टर का आपस में दूर दूर तक कोई करीबी रिश्ता नहीं नजर आता, तो वो आप ही एक्सप्लेन कर सकती हैं कि एक तरफ आप डॉक्टर बनी, दूसरी तरफ आप मॉडलिंग में भी हैं, आप एक्टिंग में भी हैं, तो मैनेज किस तरह से करती हैं, टाइम किस तरह से निकालती हैं, हॉस्पिटल कब जाती हैं, एक्टिंग कब करती हैं, मॉडलिंग कब करती हैं? मैं हॉस्पिटल में फुल टाइम जॉब करती हूँ, मतलब जो टाइमिंग्स होती हैं, लेकिन उसके बाद अपना इस शौक को मैं आके परस्यू करती हूँ। मतलब कि कोई प्रोजेक्ट आ जाए तो वो कर लेती हूँ, वरना मैं होती हॉस्पिटल में ही हूँ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਯਾਨੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਬੇ। ਯਾਨੀ ਆਪ ਸਰਗੀ ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਝਦੇ। ਹਸਪੀਟਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਆ। ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਨਾ ਇੱਕ 3 ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜ਼ਿਹਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ। ਇਹ ਨਰਸ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਡ੍ਰਿਪਾਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਵੇਖੋ ਸਟੈਟੋਸਕੋਪ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਟੈਟੋਸਕੋਪ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਰਸ ਏ, ਔਰ ਉਹ ਨਰਸ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਫਰੂਟ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਹੀ ਫਿਨੇ। ਕਿਵੇਂ? ਰੋਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਟੈਂਡ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਜੋ ਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਦੌੜ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹਸਪੀਟਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। अच्छा, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਮਾਰ ਸਨ, ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਮਾਰ ਕੱਢਤਾ। क्यों? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਸਾਲਣ ਗਰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ। And we are right back after the break. You're watching तारों से करें बातें। सलीम साहब, आपका एक शोरा फाक ड्रामा है मेरे पास तुम हो। आज डमी म्यूजियम से उसकी कास्ट हमारे पास मौजूद है और वो उसकी मिमिक्री करेंगे, कुछ सीन को बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। आपने बताना है कि आपको कैसा लगा। जी दानशिया, मैं तुकी कही छोड़िया कि मैं ताड़े नाल ना रहसा ना रहसा ना रहसा। क्यों परेशान होनी पई है? और महंगाई हौली हौली घटन ही रही है, सारे घर के हालात सही हो जाने ने, मेरे छट के ना जाएं प्लीज। तेरे कोल है कि मैं सुकियां रोटियां ते आलू ने टिक्कियां खा खा के तंग आ गईयां। ओनू माड़ा जा घ्यो दा तड़का लावे, सुक्कियां रोटियां दा इन्ना मजा आंदा। मेरे छट के ना जाई, मैनू छट के ना जाई। मैं तेरे नाल ना रहसा, बस मैं कही छोड़िया। जे तू मेरे को नहीं रह सा तो मैं किथे रह सा? जाना में जा, मैं नहीं जाना, मैनू राह दा नहीं पता। तू हाले ना माड़ा शवारा नहीं तकिया। शवारा शवारा शवारा, ए शवारा मेरे ज़हन ते सवारा। हाले तू शवारे नी पर्सनैलिटियां ना तखियां। मैं किदा किसी दी पर्सनैलिटी चेक करा और मेरा अपने तू टाइम नहीं लगन दिया। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀ, ਵੇਖ ਲਈਏ ਕੈਸਾ ਬੰਦ ਬੁੱਕੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਇਹਦਾ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਐਟਮਾਂ ਸੁਝਣ ਡਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਫੇਰ ਹੀ ਐਟਮਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਮਾੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਰਟ ਨਸਾਂ ਤੱਕੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤੱਕਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। फिर तू शवारे नी पर्सनैलिटियां ना तखियां। शवारा शवारा शवारा, किथे शवारा? मैं देख ले साउसियां पर्सनैलिटियां। तू शवारे नी बिल्डिंगां ते प्लाजे भी ना तखे। मैं शवारा भी तके, शवारे दे प्लाजे भी तके, ते मैं वो प्लाजा भी तके जेड़ा ओदी मां पा के ते प्लाजे दे आले दुआले ऐ करदी है। जुल दानशिया जुल, तेरी जेब विच ते टका भी कोई नहीं ते शवारे ने स्टॉक एक्सचेंजां च ना पैसे
ਪੈਸੇ ਸੱਟੇ, ਬੋਰੀਆਂ ਸੱਟੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟੇ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ। ਬਾਜੇ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਬਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਗਏ ਆ, ਭੰਡ ਵੱਧ ਬਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟੋ, ਅਸੀਂ ਪਾੜ ਦੇਣੇ। ਸ਼ੇਵਾਰਾ ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 5 ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਸ਼ਵਾਰਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ? 5 ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੂੰ ਫੇ ਸ਼ੇਵਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਟੋਰਾ ਨਹੀਂ ਤਖੀਆਂ। ਤੂੰ ਹਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਟੋਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀਆਂ। ਇਹ ਟੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗਿੱਲੇ ਵੇੜੇ 'ਚ ਕੁੱਕੜ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸ਼ਵਾਰਾ ਫਸਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਸ਼ੇਵਾਰਾ ਮੇਰੇ ਖ਼ਵਾਬਾਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਵਾਰਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੌਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਗਿੱਲਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸੌਵੇਂ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਖਾਬਾਂ 'ਚ ਸ਼ਵਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਸ਼ੇਵਾਰਾ ਤੱਕ ਸੇ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਸੇ। ਸ਼ਵਾਰਾ ਕੀ ਐਡਾ ਡਰਾਉਣਾ? ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਮਾੜਾ ਸ਼ੇਵਾਰਾ ਕਿ ਬਸ ਲੈਟਾਂ ਆਚਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਨਾ ਸ਼ੇਵਾਰੇ ਨੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਨਾ ਤਖੇ। ਓਏ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਸੁਣਿਆ, ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਕੇ ਫੇਰ ਹਾਊਸ ਲਿਆ। ਤੂੰ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿ, ਜ਼ਾਤ ਨਾ ਖਾਨ ਤੇ ਸ਼ੇਵਾਰੇ ਨੂੰ ਜੱਫੇ। ਲੈ ਜਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਵਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜੱਫੇ ਪਾਣ ਡਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਬਸ ਤੂੰ ਮਿਕੀ ਜਾਣ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੋੜ। ਕਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ਵਾਰਾ? ਬਲਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਵਾਰੇ ਨੂੰ। ਓਏ ਹਾਰਨ ਬਜਿਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ੇਵਾਰੇ ਨੀ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ਾ ਪਰਾਡੋ ਤੇ ਸ਼ੈਵਰਲੈਂਡਾ ਅੱਛੀ ਗਈਆਂ। ਸ਼ਵਾਰਾ ਟੋਟਿਆਂ ਜਾਉਣ ਡਿਆ ਵੀ ਅੱਧਾ ਉਧਰ ਅੱਧਾ ਉਧਰ। ਓਏ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਕਿਤੇ ਸ਼ਵਾਰਾ ਚਿੰਗਚੀ ਤੋਂ ਨਾ ਉਤਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸਾਂ ਹਾਲੇ ਸ਼ੇਵਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਤਖੀਆਂ। ਉਹ ਬਲਾਣਾ ਸੀ ਵੇਖੀਏ ਸ਼ਵਾਰਾ, ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਸ਼ਵਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ। Mavish, I'm coming. ਹਾਏ ਮਾੜਾ ਸ਼ੇਵਾਰਾ ਅੱਛੀ ਗਿਆ। ਲੋ ਤੁਸਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਥਾਮ ਲੋ, ਦਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਛੋੜੋ। ਰੱਖੋ ਸ਼ਾਇਦ। ਓਏ ਉਹ ਰੱਖਣ ਭਾਵੇਂ ਰਾਹ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਰੱਖਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਆਜੋ ਸ਼ੇਵਾਰ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਵਾਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੁਆਰਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। भैया आप टेंशन ना लें, विद इन 10 मिनट्स 2 करोड़ आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। जी जी। और सर 2 बर्गर बीफ कह दे, उस वेट ते ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੱਜਲ ਹੋਣ ਦੇ। वेट हेलो जी स्विट्जरलैंड जी, ऐसा करें मेरे अकाउंट में से ना 6 करोड़ डॉलर है, इंग्लैंड जरा ट्रांसफर कर दे। मियां नवाज शरीफ साहब को जरूरत है जरा वहाँ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਡਾਲਰ ਕਿੱਡਾ ਓਪਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਹਲੇ ਨਾ ਸ਼ੇਵਾਰੇ ਨੀ ਦਾਵਤਾ ਨਾ ਤਖੀਆਂ। ओए होए जस्ट अ मिनट यार। हेलो लॉस एंजलिस, कितना लॉस हो गया? 7 करोड़ मेंशन नोट, कोई बात नहीं। ਮਾਜੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਭਾਈ, ਲਾਸ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। इससे पार्ट ऑफ द जॉब, कोई बात नहीं। जी क्या कह रहे हो? ਓ ਖੱਖੜ ਪੂੜੇ ਚੋਂ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਸ਼ਵਾਰਿਆ। कोई जस्ट अ मिनट, मैं जरा पहले कॉपीराइट होल्डर ना गल कर। ਇੱਕ ਫੋਨ ਸੰਦ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਬੀ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਈ ਜੇ। भाई मेरी बात सुने, माशाल्लाह कैसी आपकी शक्ल है, मेडिकेटेड आमलेट लग रहे हैं। और सीनिया मैं ਤੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਵਜਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੋਲੀ ਸੱਠਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਟਗੇਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੱਕਿਆ ਹੀ ਮਾੜਾ ਸ਼ੇਵਾਰਾ। ਆ ਤੇਰਾ ਸ਼ਵਾਰਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਉਹ ਜੇ ਸ਼ਵਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਖ ਲਾੜ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਨਿਸ਼ ਹੋਣ ਤੇ। आपने कही ताड़े ते पई है। हेलो स्टॉक एक्सचेंज हेलो की है, डॉलर का रेट थले आ रहा है। अच्छा ऐसा करो, मेरे अकाउंट चो काट के ना 2 अरब रुपया उधर पाओ ताकि डॉलर जरा थोड़ा जिहा अप हो जाए। थैंक यू ਸਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਖਾਲਾ ਨਜਮਾ 20 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਭਾਈ ਸ਼ਵਾਰਿਆ ਫੋਨ ਕੀਦਾ ਵਾ? ਸੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। क्यों हो ਆ जा? ਕਿਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾਂ? अच्छा तू ना मेरे को मुंह परे कर ला, मैनू लगता मेरे सारे अमाल दा सिला मैनू इत्थे मिल गया। ਛੁਆਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਸਲਨ ਫੋਟੋ ਲਵਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਵਾਉਂਦਾ, ਬਤਾਏ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੌन है। हाँ सर मतलब पापा गंजा गंज होया, बाबे नवी सैप हो गया। वो जेडे बाहर नहीं आते आके फेरी लाते 6000 रुपए किलो बाल बेच लो। फिर बाबे ਨੂੰ ਕਿਤੇ 2000 ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਵਾਲ ਲਾ ਕੇ ਛਾਪਰ ਚ ਪਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਗਮੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ ਭਲਾ ਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਰੀ ਅਸੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਲ ਲੈਣੇ। माड़ा शहवारा कोई आम बंदा नहीं है। हाले तुसा ना इसकी कॉमेडियां नहीं तखियां। ਪਰ ਪਤਾ ਸ਼ਵਾਰੇ ਦਾ ਕਲਰ ਕਿਉਂ ਬਲੈਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ? ਉਹ ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਤੇ ਟਾਈ ਚੂਸ ਗਈ ਵੇਖੋ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੇਰੀ ਤੋਜੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਵਿਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਵਿਸ਼ ਹੈਗੀ। ਸ਼ਵਾਰੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਗਰਮ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸ਼ਵਾਰੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਗੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਹ ਪੀਂਗੇ ਸ਼ਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ? हाँ मंगवा लें। हाँ मंगवा ते नाल रस भी मंगा। ਰਸ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣੇ, ਗਾਰਡਰ ਕੇਕ ਮਿਲਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਾ ਲਓਗੇ? ਉਹ 2 ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੀ ਮੰਗਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਗੱਛ ਪੈ ਜਾਏ। ਉਹ 2 ਬਿਸਕੁਟ ਵੀ ਨਾਲ ਮੰਗਾਈ ਯਾਰ। बेटा जेडे तू बंद खाना बड़ी देर से बंद हो गए ने बेटा, छड़ दे। हेलो जी जी जजीरा किन्ने दा विक रहा? 3 अरब डॉलर ਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਜਜ਼ੀਰਾ ਖਰੀਦਣ ਡੇ ਜੇ। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੰਜ਼ੀਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ੰਜੀਰਾ ਖਰੀਦਣ ਡਿਆ। खबर कर ला मेरे वीरा, मैनू खरीद लैंदे जजीरा। ਓਏ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ ਚੀਰਾ ਕੋਈ ਜਜ਼ੀਰਾ। ਤੂੰ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਕਾਲਾ ਜ਼ੀਰਾ ਹੈ। 2 ਕਰੋੜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਊਂਗਾ, ਕਹਿ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਹਮਸ਼ੀਰਾ। 2 करोड़ देसे हैं, किथों देसे? 23,000 ते तेरी तनख्वाह है। ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ। चलो मायूष मेरे पास टाइम नहीं है, आई हैव नो टाइम। ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਘੜੀ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ। हाँ भी दानिश, कल तुम्हारे अकाउंट में 50 मिलियन ट्रांसफर हो जाएंगे। चलो मायूष। ਮੈਨੂੰ ਦਸਤੀ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰੌਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। मैं तेन दस्ती ना कर रहा, मेरे को है नहीं। चलो जी। ਮੈਂ ਬਸ
तुम वाकई इसके साथ जाना चाहती हो? हाँ जासा मैं मिंट ना लासा ਉਹ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਸਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ना ਆ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਛੱਤ ਤੇ ਸੋਣਾ ਹੀ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੰਜੀਆਂ ਹੀ ਦੋ ਨੇ। चले शहवारा छोड़ के प्लीज ना जाना, मैं उदास हो जाऊंगा, मैं परेशान हो जाऊंगा। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਹੈ। जोन जोन अपनी शक्ल दूर कर, मैं तो शहवारे नाल ही जासा। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਸ਼ਵਾਰੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਦਾਨਿਸ਼ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਆਂਡੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਮੱਤ ਵੱਜੀ। ਸਵਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹੀ, ਇਹ ਰਹਿਣੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ भी नहीं। ਇਹਦੇ ਬੁਰੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬਦਵਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। लेकिन सवारे एक बात कान खोल के सुन लो, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ ਯਾਰ। इसके आंखों में आंसू ना है, इसको परेशान मत करना। ਹੋਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ। ਹੈਲੋ, 2:30 ਵਜੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਆਓ ਜੀ ਚਲੀਏ। चलो जी चलो, मैं जा रही हूँ। ओ दानिश ड्रामे वाला, मैं दानिश गवाल मंडी दा वां, मैं तेरी अखां कढांगा, मैं तेरी माड़ा अखां कढांगा। भाई मेरी बात, मैं माड़ा शहवारा मैनू कोई नहीं बचा सकता, मैं तेरी अखां कढांगा। ਓਏ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਓਏ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਚਲਾ, मैं तेनू पकड़ो, ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੋਲੀ ਫਸੀ ਏ। मैं तेनू ओ मैनू ना मारी, ਓ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਸਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲਿਆਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਫੇਡੀ ਖਾਂਦਾ ਰਵਾਂ। दानशे तू माड़े शहवारे ऊपर हाथ चुकिया ही, मैं हुण ते ताड़े नाल बिल्कुल ना रहसा। मैं उन्होंने मारिया ते मैं नाते नहीं भी मारता। चल कर बैठ जाके, चलो पाचो शादी हाल लभण वाले हो, पाचो पाचो। माड़े शहवारे की मारी आई। ओ दानिश जरूर तुम्हारे सी, ए दानिश गैरत मांदे, तू हजे दानिश दी गैरतां में तकियां। मीडिया में और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन खान साहब ने आपको बुलाया और कुछ और लोगों को बुलाया। क्या आपकी पहले से दोस्ती है या पहली दफा आपकी मुलाकात हुई खान साहब से? पहली दफा मुलाकात हुई, कोई दोस्ती भी नहीं। तो आप शुरू से ही खान साहब को सपोर्ट करते हैं, पीटीआई को देखिए मैं सपोर्ट करते एक हैं? पक्का पीपल्स पार्टी का आदमी था किसी जमाने में। अच्छा भुट्टो का डाई हार्ड फैन। अच्छा। मैं शख्सियत परस्त आदमी नहीं। हम्म मैंने 35 सालों में इन दोनों को बारी बारी वोट डाले। अच्छा। फिर जो इन्होंने हशर किया मेरे मुल्क का, हाँ जी। उसके बाद मेरे पास एक नया चॉइस आया था। उसके पीछे एक ट्रैक रिकॉर्ड था उसकी क्रिकेट का। सो चीजें नजर आ रही थी कि व्हेन ही थिंक्स ही गोज एंड ही डिलीवर्स। आई वोटेड फॉर हिम। आई नेवर थॉट ऑफ मीटिंग हिम। मैं नहीं मिलता किसी से भी, वो भी बड़ा आदमी है, हम भी छोटे आदमी नहीं है। लेकिन वो रचाव आया है जिसमें वी कुड अंडरस्टैंड ईच अदर। वन डे he might have been told and he got it because when he shook hand with me, but वहां तक पहुंचने का एक वक्त था जो तय हुआ। He was the man who was hope for the country. The moment this hope was going to be materialized, it is destroyed. So were you happy with his performance? जितना भी उन्होंने deliver किया, जो कुछ भी जिस तरह का मुल्क उसको देकर गए थे जी, वो तो 3 महीने नहीं चल सकता था। मैं एक बैंकर हूँ बाय प्रोफेशन, एक इकोनॉमिक्स का एक स्टूडेंट हूँ। आई नो जिस किस्म का मुल्क उसको देकर गए थे वो तो 2 महीने का 1.5 महीना नहीं चल सकता था। वो 3.5 साल चला गया है और सक्सेसफुली चला गया है। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ इतना समय लीजिए जो सुन रहे हैं जी, मैंने अपनी जिंदगी में पाकिस्तान का करंट अकाउंट पॉजिटिव नहीं देखा। दिस वॉज फर्स्ट एवर टाइम इन माई लाइफ कि आपका करंट अकाउंट जो है वो पॉजिटिव था। और वो रीढ़ की हड्डी होता है एक मुल्क की। बिल्कुल। डॉक्टर अनीजा जी, बचपन की कुछ यादें हमारे साथ शेयर करो। मुझे ये बताओ बचपन में किस बात पे मार पड़ती थी अम्मा अब्बा से? बहन भाइयों से सबसे ज्यादा लड़ाई करने पे, बहनों के साथ लड़ाई करने आप तो पे। बिल्कुल लड़ाका नहीं लगती हो भाई। अच्छा, तो ज्यादा बचपन में लड़ती किस बात पे थी बहन भाइयों से? वैसे किसी भी बात पे लड़ाई हो जाती थी, टीवी के रिमोट से, एसी के रिमोट से, मामा पे, पापा पे, किसी भी बात पे लड़ाई हो जो जाती मेरा थी। बर्गर किने काट के खाता है। बचपन में लड़ाइयाँ मासूम लड़ाइयाँ होंदियां। डिंकी तो लड़ाई हो गई, ये पंखा किसने तेज कर दिया, मैं अम्मी के साथ सोऊंगी, यही गल्लां हो। बाबा तेरा बचपन तो 150-200 साल हो गए, लंघ गया मेरे ख्याल है। हाय की याद करो आज तक। लम्मी का लगी बाबा ना याद कर तेरी मेरे पास। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। डॉक्टर अनीजा और खलील साहब से जहां से हमने गुफ्तगू का सिलसिला तोड़ा था वहीं से आगे बढ़ाते हैं। खलील साहब, आपकी क्या जाती राय है? खान साहब जो अपना केस बना रहे हैं, क्या उसमें कोई वजन है? और हमारी जो अवाम है क्या उस बात को बाय करेंगे, उस नुक्ता नजर को? Don't you see the situation today? Go and watch. वो सिचुएशन वो नहीं बना रहा, वो इन्होंने बना के दे दी उसको। और अल्लाह की मेहरबानी उसके साथ है। याद रखिएगा, सच्चे आदमी के लिए थोड़े दिन की तकलीफ होती है,
he comes back and he conquers. So you're super sure he's going to come back? इंशाल्लाह he'll come back. Otherwise मैं डरता हूँ इस मुल्क की एग्जिस्टेंस के बारे में डरता हूँ। चोरों के साथ आप कब कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं इस मुल्क को? वो तो बाहर उनके बच्चे हैं, हुकूमत करने यहाँ आते हैं, वो वहाँ के नेशनल हैं। उनको आप खान साहब के भी तो बच्चे बाहर ही हैं। खान साहब के बाय डिफॉल्ट बाहर है क्योंकि उसकी बीवी बाहर है और वो वहाँ की इंग्लैंड की। तो यहाँ पे भी तो हो सकते थे। देखिए सबसे अच्छा काम है कि बीवी से आप बच्चे नहीं छीन सकते। नहीं, बिल्कुल ना छीने आप ये चीज़ अंडरस्टैंड इंस्टेड के आप इस बात को इस तरह लें। आप ये देखिए कि वो बच्चों के बगैर रहा है, अपनी माँ से बच्चे जुदा नहीं होने दिए उसने। इस बात को अप्रिशिएट कीजिए। आपके बच्चे भी बाहर है, मांग के आ भी चुके, आपकी बेगम कह रही है और मांग के ले आओ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੱਚੇ ਪਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੰਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਆਇੰਟਰ ਪੜਦੀਆਂ या फिर ऑरेंज शर्ट पा के बैठ जाते हैं। डॉक्टर नीज़ा जी, मुझे ये बताएं कि पहली बार मोहब्बत कब हुई, किससे हुई? मोहब्बत वो किसी कुड़ी ने नहीं मनना। डॉक्टर नीज़ा आज बता दो, आज सच बता दो कि पहली बार तोड़ दे। रिकॉर्ड तोड़ दे आज। सर वैसे एक मेरा जानने वाले ने जब मुझे पता लगा कि मैं आपके साथ शो पे आ रही हूँ तो उन्होंने एक सवाल पूछा था कि खोई हुई मोहब्बत को वापस लाने का कोई तरीका पहले है? तो अपनी मोहब्बत 10 रुपये खोया ही वापस। देखो जो मोहब्बत खो जाती है ना जी, वो क्या है, मेरे पास तुम हो का ड्रामा था जी कि जिसको पिछली मोहब्बत कहना पड़े वो पिछली बार भी मोहब्बत नहीं थी। क्या बात है, खूबसूरत कहा। तो डॉक्टर साहिबा फिर आज रिकॉर्ड तोड़ दें और बता ही दें कि किससे मोहब्बत हुई पहली बार, कहाँ मोहब्बत हुई, हॉस्पिटल में हुई? नहीं नहीं बता क्यों नहीं रही? क्या आजकल उसके 3-4 बच्चे हैं? नहीं, हम इतने बुजुर्ग नहीं हैं, हम तो वो अभी की हर जनरेशन गल है। अपने दौर दी समझदा हो। चले कोई कभी मोहब्बत हुई है ये बता दो, ये ना बताओ कि हुई किससे है। हुई? हुई है। हुई है। तो वो मिल गई है या अभी प्रोसेस में है या नहीं मिले, नहीं मिली, दिल टूटा हुआ है? नहीं टूटा भी नहीं हुआ लेकिन मोहब्बत भी नहीं हुई। ये अच्छी बात है, टूटा नहीं हुआ। तो यू हैव मूव्ड ऑन। या खलील साहब व्हाट्स योर टेक मोहब्बत पे, क्या कहेंगे आप? जो छोड़कर चले जाते हैं ना वो जी। सस्ते लोग होते हैं और सस्ते लोगों के लिए महंगे आंसू नहीं बहाया करते। वाह, अरे वाह वाह वाह। असल में पता क्या है, जी औरत इतनी बड़ी है अपने कद में और अपने पैकर में, उसकी कीमत कोई नहीं। और जब वो बिक जाती है ओए होए, खुदा की कसम उसकी टके की कीमत भी नहीं। बिल्कुल सही। वेरी डीप। ये समझने वाली बातें आप लोगों को कहाँ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣੀ है, तुसी समझो। बिल्कुल नहीं, वो इनके तो खिलाफ इतनी है। बिल्कुल खिलाफ नहीं कर रहे। आई आप थिंक क्या बहुत अच्छी करते बात हैं? कर सर रहे मेरे हैं। यहाँ की अच्छी औरत ही तो मेरा माशरा चला रही है और वो मेरा क्या और बात आपका प्राइड है। बिल्कुल सही बात। को हयादार लड़की नजर आए, आंखें झुकाइए, इस तरह इज्जत कीजिए जैसे अपनी माँ बहन की इज्जत करते हैं उसकी। बहुत यस, बहुत डॉक्टर नीज़ा जी, मुझे ये बताओ कि आपके होने वाले उन्हों में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? 3 क्वालिटीज जिसका होना बहुत जरूरी है। हैंडसम हो, अच्छा हैंडसम हो, बहुत ज़्यादा, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो अच्छा विटी भी हो, ठीक है, और फाइनेंशियली स्टेबल हो। इस सामना तो मेरी बीवी में ना कभी भी आना कर दी। देखो मैं आपको बताऊं, ये मैटर करता है कि जिस मर्द से आप शादी करती हैं उसके अंदर मर्द हो। तो प्यारे अफजल में मेरा एक डायलॉग था कि मर्दों में मर्द के बच्चे को ढूंढना बिल्कुल ऐसे है जैसे तरबूजों के ढेर में से उस तरबूज को ढूंढ लेना जो अंदर से लाल हो। अरे वाह। तो वो जब अंदर से लाल होता है ना, वो जब मर्द होता है जी। फिर आपके लिए सब कुछ ले आता है वो। सही बात। अरे वाह, हाँ। खूबसूरत बात। ਕੁੜੀਏ ਖਲੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕਿ ਲਾਲ ਦਵਾਣਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਖਾਮਦ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਲੱਭਣਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਲਾਲ ਦਵਾਨਾ ਤੇ ਫੀਨਾ ਖਾਮਦ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰਨੇ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਦਵਾਨਾ ਤੇ ਟਿੰਡਾ ਦਾ ਖਾਵਨ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਲੱਭਦਾ। ਬਾਬੇ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਅੱਜ ਕੁੜਮ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਬਿਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। जी डॉक्टर नीज़ा आप कुछ पूछना चाह रही थी खलील साहब जी से। सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि ऐसा मर्द फिर कैसे मिलता है, मतलब उसकी क्या सही पहचान बात होती है, है? क्या पहचान है, क्या कैसे पहचान हम होती मर्द है? के हाँ। बच्चे को कैसे कैसे ढूंढे? इतनी अच्छी हो जाइए हम्म। आपको अच्छा मर्द मिल जाएगा। बड़े आराम से मिल जाता खलील है। साहब वैसे मर्दों के हजूम में मर्द का बच्चा तलाश कैसे करें? हाँ, जब क्या सब- टिप्स देंगे आप हमें? मैं आपको बता देता हूँ, जी जिस मर्द को औरत की कमाई खाने का शौक हो वो प्राइमा फिसाई मर्द नहीं होता। ठीक है, घर चलाने में औरत का पैसा मैं बिलीव ही नहीं करता। वो चाहे शी इज अ वर्किंग वूमन, ठीक है, शी शुड बी यूजिंग हर मनी फॉर हरसेल्फ।
She should not be contributing to run the house until and unless the mard is a paralyzed guy. Yes. ओके, मर्द औरत की नान नफके की जिम्मेदारी सरासर मर्द की है। ठीक है। सबसे पहले तो उसको ढूंढने ना निकले सड़कों के ऊपर, ठीक है। ये सड़कों पर नहीं मिलता है। खुद आपके पास आएंगे। ओ यार एक देखिए, पहले तो हमने मोहब्बत को समझने में बड़ी गलतियां करती हैं। ये जो है ना, ही शुड बी हैंडसम, अब ये हैंडसम डिफाइन करने में बड़ी डिफिकल्टी हो जाएगी। वो आप शक्लों से मोहब्बत शुरू करते हैं, तो शक्लें, वो एक अच्छी शक्ल फिर कईयों को पसंद आ जाती है, फिर उसने तय करना होता है कि मैनू केड़ी पसंद है। सही बात है। तो आप व्हेन यू हैव अ चॉइस, दे हैव द, यू जस्ट प्रे ही शुड बी अ मैन, अ गुड मैन। हाँ, अल्लाह के फजल से सब अच्छी शक्लें हैं, आपकी चॉइसेस है, उसमें कुछ आपने डेफिनेशन रखी होगी हैंडसम की, बट याद रखिएगा, जितना भी खूबसूरत मर्द हो, जितना भी हैंडसम हो जी, ये बातें आपको याद, अल्लाह करे आपको याद ही ना आए, ये ऐसा अच्छा मर्द मिल जाए आपको कि मर्द के अंदर जब तक मर्द नहीं होता वो हैंडसम नहीं होता। वाह वाह। ओ फिर ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਖਾ ਗਏ ਹੋ। ਤੂੰ ਅਰਤਗੁਲ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ। ਗੱਲ ਮਰਦ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੰਜ ਦੀ ਹੋਵੇ। अच्छा डॉक्टर नीज़ा, आपने कहा फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए, कितना फाइनेंशियली स्टेबल हो, क्या उसके पास घर हो, गाड़ी हो, हाउ वुड यू डिफाइन मैं फाइनेंशियली 6 साल बाद ना रहा फाइनेंशियल स्टेबल, तो फिर यही मैं पूछना चाह रही हूँ कि so कितना this is not a pertinent demand, make him financially sound। वो जब आएगा, give him power। बीवी बहुत बड़ी पावर होती है। अरे वाह। मैं 10 रुपए रोज लेता था जब मेरी शादी हुई थी, वो चवन्नियाँ जमा करके एक रुमाल में रखती थी। मैं आई वॉज इन BCom Part 1 when I got married। वो वही चवन्नियों वाली है, समझे हो? शी मेड खलीलुर रहमान। वाह। तो क्रेडिट आपकी बीवी को भी Of जाता है, course। आज आप जो कुछ भी हैं। आप याद रखिए, मैं आपको अभी, मैं आई बीन डिस्कसिंग, अगर ये पॉलिटिकल सिनारियो ना आ जाता तो आई वाज जी। वेरी मच ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। एक गलत नोशन के साथ हमारी जिंदगियां गुजर रही हैं। एक फिक्रा बहुत बचपन से सिखाया गया कि माँ बच्चे की तरबियत करती है। मैं कलमा पढ़ के कहता हूँ, माँ बच्चे की तरबियत नहीं करती, माँ बच्चे को पालती है, पूरी ऑनेस्टी से पालती है। तरबियत वो औरत करती है जिसके साथ मर्द को मोहब्बत होती है, या जिसके साथ उसकी शादी होती है और उसको पसंद करता है वो, वरना कोई दुनिया की औरत उसकी तरबियत नहीं कर सकती। माँ तो उसको समझाती, डराती, रोकती, टोकती, और वो तरबियत नहीं होती। वरना तो जेलर भी फिर कैदियों की तरबियत कर रहे होते, उनको ब्लैकमेल किया जाता है, तुम ये कर लोगे तो ये दे दूंगी, ये मिल जाएगा, तुम ये नहीं करोगे तो ये होगा, अब्बा से पिटवाऊंगी। ये तरबियत नहीं है। अगर ये माँ तरबियत करती तो हमारे मुल्क में इतनी करप्शन ना होती। ये जब माँ अगर तरबियत करती, आप बैठ के सोचिए, तो मेरे मुल्क में इतनी करप्शन होती? सही बात है, नहीं ये होता। तरबियत वो औरत करती है जिसने वो पैसा इस्तेमाल करना है। वो अगर दरवाजे पर खड़ा करके पूछे ना, इतने पैसे कहाँ से लेके आए हो? जितने भी मर्द करप्शन करते हैं, उनकी बीवियां इस चीज Oh को yes, encourage they are करती part, हैं। याद रखिएगा, वो उनकी अकम्प्लिस है बीच में, वरना मर्द की जरूरत नहीं है कि मर्द को करप्शन पर माइल ही औरत करती है, और औरत ही रोक देती है। वो बड़ी औरतें हैं, वो चलाती है माशरा मेरा, और उनकी वजह से बचा हुआ है आपका ये करप्ट मुल्क आज अभी तक। मर्द, औरत को बहुत ठीक से मालूम होता है कि मर्द मेरा कितनी सैलरी है उसकी, या इसकी एवरेज आमदनी कितनी है। उस दिन जब वो ग्रेटर देन दैट लेके आए ना, वो उठा के यूं फेंके, ये नहीं चाहिए। दैट माई वाइफ डेड। रियली? एक दिन मैं ताश खेल के को 2200, मेरे बच्चे को 35-36 घंटे से भूखे थे उस वक्त, मैं ताश के 2200 रुपये कमा के लाया, सर उसने नहीं लिए। हम भूखे रहे अगली रात में। सुबह एक दोस्त आया, 200 रुपया दे गया, उससे हमने घर चलाया। लेकिन दैट मेड माई लाइफ। हलाल खा के सुकून से सोने का मजा तो लेना सीखिए। उन्होंने पूछो कदों कॉमेडी सीरियल ले रहने को, कदों कॉमेडी ड्रामा को, ये वो में होती है। पंजाब नहीं जाऊंगी, थोड़ी कॉमेडी थी यार। अभी लंदन नहीं जाऊंगा आ रही है। अच्छा, सच अ हिलेरियस फिल्म, लेकिन फिर एक मैसेज है उसमें। देखो, मैसेज के बगैर मैं नहीं लिख सकता। जाहिर है, सही बात है, साउंड मैसेज होता है, बिल्कुल। और आपको हैरान होंगी आप, ये फिल्म वो फेमिनिस्टों से लड़ाई से 8 महीने पहले लिखी गई थी। हाँ जी। एंड दैट इज ऑन द वीमेन राइट्स। खान इन सब की फिल्म लिखने वाला है इंशाल्लाह। आप खान साहब पे फिल्म लिखें, असेंबली नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएगा? वही तो जाएगा। लौंडे लपाड़े नहीं रहेंगे। डॉक्टर अनीजा जी, अगर इसमें से किसी सियासतदान का रिश्ता आए तो किसको फौरन से हाँ बोल देंगी, किसको कहेंगी मैं सोचकर बताऊंगी, और किसको कहेंगी नो चांस भाई?
ٹھیک ہے आपके ऑप्शंस हैं शेख रशीद, बिलावल भुट्टो जरदारी, शहबाज शरीफ साहब। शेख रशीद फौरन हाँ कर दूंगी। फौरन से हाँ कर देंगी? जी। आपको हैंडसम लगते होंगे आई एम श्योर। वो अच्छे हैं। और डॉक्टर साहिबा किधर शेखों के चक्कर में पड़ गई आप? सारी जिंदगी अच्छा खाने और कपड़े पहनने को तरसेंगी आप। कोई मसला नहीं, उसके साथ इमरान खान है ना, बस यही बहुत है। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨੇ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। बिलावल भुट्टो कभी भी नहीं, नो चांस। नो चांस। और शहबाज शरीफ अब आखिरी ऑप्शन है, तो सोच कर उन्हें बताऊंगी। बताएंगी। अल्लाह ना करे ऐसा कभी सोचने का मौका आए।